ان کی سفیدی پر دھیان نہ دو لڑکی، ان کی خوشبو پر دو۔ پھول جیسے بھی ہوں تمہارے تو اچھے دوست ہیں، اور صرف پھول کافی نہیں تو چلو میں بھی تو ہوں ساتھ۔ مجھ سے اچھا گفٹ ہو سکتا ہے کہ اس بار وہ مسکراتا ہوا خود پر اتر آیا، نہ چاہتے ہوئے بھی، ہر خوف اور بیزاری کے باوجود پھیکا سا مسکرا دیا۔ احسان نہیں ہے کیا آپ آ کر سمجھے، یہ آپ کا فرض ہے، مجھے نہیں پتا گفٹ تو دینا ہوگا۔ عائشہ میڈم ایک بار پھر بلاوے کے لیے آ چکی تھی اور وہ دونوں کو اب تک کے مذاکرات میں مصروف دیکھے یکدم شدھ دو شدھ ہو کر بیٹھ گئے۔ اندر آتی عائشہ نے دل جلائے ہانک لگاتے مشورہ دیا تو انفر نے اسے آنکھ کے اشارے سے کچھ کہا کہ عائشہ نے جواباً مسکرائی۔ خون کافی ہے اس کے لیے عائشہ، وہ بھی جیسے شرارت پر اترے گفٹ والے تقاضے سے باز نکلتا بولی، مگر انفال صاحبہ نے اپنے نام کی تو بس کی رٹ لگائی۔ میرال کو بات بدلتا دیکھ کر انفال نے اپنا تقاضا نادیدہ پن دکھائے دہرایا تو اب عائشہ بھی عجیب سی ہو گئی۔ جناب نے بیچاری سی نگاہ سفید پھولوں پر ڈالے پاس لب دہرایا جس پر دونوں لڑکیوں نے سر ایک ساتھ ہلایا۔ میرال بھائی یہ تو غلط بات ہے، انفا کا گفٹ تو دینا ہوگا آپ کو۔ انفال کو اپنی حمایت میں بولتی عائشہ پر پیار سا امڑ ڈالا۔ میرال نے گرگٹ کی طرح اس کی سہیلیوں کو ساتھ ہوتے ہوئے دیکھ کر ہنس دیا۔ جی کیوں نہیں، یہ میری دوست ہیں، چلیں نکالیں گفٹ، اور تو کچھ نہیں تو میرا پسندیدہ بین ہی رکھ لو۔ میرال نے کوٹ کی جیب سے نکال کر نہایت خوبصورتی سے اس کو دیا۔ وہ ہمیشہ سے اپنی من پسند چیزیں بنا سوچے تھما دیتا تھا، تبھی تو وہ اتراتی تھی، یہ تمہارا ہوا، کچھ نہ دیتا تو مجھے تانے دے کر مار دیتی۔ وہ نہایت دھیمی انداز سے کہتی، آخر پر شرارت سے اٹھ کر کھڑا ہو کر مسکرایا۔ ہاں ہاں، یہ واقعی بہت پیارا ہے، ویسے بھی مجھے پہلے کیوں نہیں دیا، کنجوس ہینری مین، آپ کی پوری کوشش تھی میری اس پر نظر نہ پڑے۔ دیکھ لیں بیڈ سے اتری آئے میرال کے روبرو آن چکی، کیا یاد کریں گے آپ کے کس سخی انفال سے پالا پڑا، معاف کیا آپ کو، لیکن دوبارہ مجھے اگنور کیا تو سزا دوں گے۔ تمہارے 2 روپے کی دھمکی ہوگی تو اچھے بچوں کی طرح اب نیچے آ جاؤ۔ وہ اسے تکتا ہوا جس طرح مکروح ہوئے تاکید کرتے بولا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دی۔ اوکے تھینک یو، ویسے سنا تو شکریہ جیسے اضافی لفظ سن کر انسنا کر دیا۔ وہ مڑا تو اس نے میرال کے بازو پر پھیلے رکھے آفت خیز مسکراہٹ دبائے سرکار کے جلوں اور چمکاروں پر نظر جماتے پھر اصرار کی۔ آپ کو کوئی گزارش لائق لگے تو مجھے اشارہ کر دیجیے گا، لگے ہاتھوں آپ کے ہاتھ پیلے کر دوں گی۔ شرارت پر مائل وہ میرال کو یہ کہہ کر پہلے شوق پھر ہنسا کر البتہ عائشہ کے دانت ماہر آ گئے۔ اپنے ڈپٹے لہجے میں وہ الفا کو کہتا فوری کمرے سے باہر لپکا، البتہ اس کے جاتے عائشہ ضرور بے دم ہوتی ہے جسے کشن دے کر مارے۔ انفا بھی کہیں بس لب مسکان سے چھپائے ہو گئی۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ہماری آج کی اس خوبصورت محفل کی رونق تشریف لا چکی ہیں۔ ویلکم مائی سویٹ پرنسس انفال، سب سے پہلے میری طرف سے میری گڑیوں کو ہیپی برتھ ڈے۔ تالیوں کی گونج کے سنگ تقریب کی مہمان خصوصی روشنی میں منعقد کیا۔ انفال مررز میں کوئی ایسا لگ رہی تھی کہ اپنی نیلی آنکھوں کا عکس اپنے پورے وجود پر ڈالتی وہ سب کے بیچ آ چکی تھی۔ اس قدر کم تیار ہونے کے باوجود وہاں سب سے زیادہ ممتاز دکھائی دے رہی تھی۔ عائشہ میں بھی اس کے ساتھ سائے کی طرح موجود تھی۔ ممانی ماموں سب کزن اس کے پیار دادا جان کی تالیاں بجا رہے تھے۔ وہ سب کچھ فاصلے پر کھڑا جوس کا گلاس تھامے سبحان صاحب اور باقی سب مرد حضرات کے نیچے جو اس الفا کو دیکھ رہے تھے جو وی آئی پی بنی ہوئی تھی۔ ان سب اپنوں کی محبت میں یوں کھو جاتی جیسے گلاب کا ایک اکلوتا پھول گلشن کے رنگ میں کھو جاتا ہے۔ اس وقت وہ اپنی خوشیوں کے بڑھنے کی دعا کر رہا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ڈیئر انفال۔ برتھ ڈے کا سانگ گاتا عیال بھی 3 منزلہ خوبصورت کیک کی ٹرالی لیے اس سمت آیا۔ وہ 3 منزلہ کیک اپنی مثال آپ تھا۔ کیک دیکھ کر الفا حیرت اور خوشی سے جگمگاتی مسکراہٹ کے سنگ کیک کاٹنے کے ارادے ڈھانپ رہی تھی۔ اب کیا دیکھتی رہو گی، اسے کاٹو بھی۔ ایان نے مسکراتے ہوئے انفال کو کیک کی خوبصورتی میں ماہریت سے گم پائے باقاعدہ اس کا کندھا ہلاتے ہوئے اس کی طرف متوجہ، اتنا پیارا کیک ہے، میرا کاٹنے کا دل ہی نہیں کر رہا۔ وہ بہت معصومیت سے کہنے لگی، بھائی واقعی میرال کیا خوبصورت کیک بنایا ہے تم نے، دیکھ کر دل ہی خوش ہو گیا۔ مریم بھی کی اس ستائشی تعریف نے انفا نے بے یقینی کے سنگ میرال کو دیکھا جب وہ اب انجان بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ مجھے کہہ رہے تھے گفٹ نہیں ہے، ہینری مین لائے ہیں اسے۔ میرال پہلے غصہ پھر پیار آیا، اس کی حسین مسکراہٹ تک کی سوچ رہی تھی جو انفا کو سرپرائز دے کر اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح بنی ہوئی تھی۔ کیک کاٹنے کے بعد وہ باری باری سب کو پھر سب اسے کھلا رہے تھے، سب کو نپٹاتی وہ تب متوجہ ہوئی جب وہ فرصت سے اس کے پاس چلا آیا، شاید یہ تفصیلی جاننے کے لیے کہ اسے سرپرائز کیسے لگا۔ کیک کا منی سا ٹکڑا وہ میرال کے ہونٹوں کی طرف بڑھائے جیسے ہی تھوڑا سا کھایا واپس اس نے الفا کے منہ میں ڈال دیا۔ بہت پیارا کیک تھا، وہ میرال کی جانب تکتی پسندیدگی عیاں کیے بولی۔ وہ واپس چلا گیا، سب سرپرائز سے اپنی جانب اسے بلا رہے تھے۔ کیک کاٹنے کے بعد ڈنر کا بھی انتظام تھا، تب تک گھر والوں کے لیے خوشخبریوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ پھر کیسی لگی ہماری پرنسس کو پارٹی، سبحان صاحب نے محبت اور لاڈ کے مل جلے انداز سے پوچھا تو وہ مسکرا دی۔ مطلب یہی تھا کہ پارٹی شاندار ہے، سب بہت اچھا تھا۔ وہ اپنے اصلی انداز میں جو ہے وہ بولی، لہجے میں خوشی اور سکھ کا عنصر زیادہ تھا۔ سب کچھ تمہارے لیے تھا، دادا تو تھے ہی، اپنی پوتی پر قربان، لڑکی آج تو تمہارے پاس بڑے تھے، جمع ہو گئے۔
गिफ्ट अपने हैंडसम कज़न के साथ शेयर नहीं करोगे? यान पर वक्त मैदान में उतर आया, खुद तो तुम्हें देने की तौफीक नहीं हो, मेरे गिफ्ट पर भी नज़र रखी हुई है। वो जो तोहफों वाले मजाक पर लड़ने मरने पर उतर आई थी, उसकी बात पर गिफ्ट ना देने के इल्ज़ाम में अयान तड़प उठा। सब फिर भी बड़े मुस्कुरा दिए। अल्लाह अल्लाह शोधी ने लड़की, यही कहता अयान ढीठपन से अल्फा की चढ़ बढ़ाता तफाखर से अपने राज पर गर्दन अकड़ाए उसने छोटी छोटी कैसे लताड़ा, मेरी किस्मत में भी इतनी नहीं फूटी, कहकर वो हंस दे। इस बार अनफाल आप मेरे साथ गिफ्ट शेयर करेंगी, मेरा किसी से कम थोड़ी था। बेतकल्फी से मैदान में उतरा और अनफा बड़े मियाँ के बाद छोटे मियाँ पर भी सरापे हैरत बनी। सच्ची बात तो ये है, मैं किसी से कुछ शेयर नहीं करने वाली। देखिए ना एंटी मैन, मैं किन कंजूसों में फंस गई हूँ। बआवाज़ बुलंद सब उम्मीद लगाकर फरीकैन बैठे फरीकैन को टक्कर से जवाब दिया। अनफाल शिकायती नजरों से करीब ही बैठे मिराल की और उसकी झुकी सब शिकायतें करती हुई बोली। तो मिराल पहले तो संजीदा हो फिर शरारत होता। देखो लड़की जैसे लीडर होते हैं वैसे उसकी फौज होती, उसे तंग करने पर तो मजाक में मूड में था, मगर वो उसे आंखें घुमाकर देख रहा था जो उसे हंसा चुका था। सबने काफी इंजॉय किया था, मुराद भी काफी देर तक रुका रहा था। रात तक ये महफिल अपने अरूज में रही। फिर डिनर के बाद चाय वगैरह का सेशन चला, जिसके बाद सब वापसी के लिए रवाना हुए। अलबत्ता मिराल किसी अर्जेंट काम का बहाना कैसे लेने से पहले ही निकल गया था। आयशा को सी ऑफ किया, वो रूम में आ गई, कपड़े बदल कर वापस नॉर्मल होलियो में आ गई। एक पैन खुशी में बाहर इन सारे तोहफे उसने नजरअंदाज कर दिए। इतने सारे तोहफों में जब उसे प्यारे से अपने एंग्री मैन के दिए बैन ही था, जिसको कितनी देर बैठी वो देखती उसे जैसे वो कोई खजाना था। नई पूरी रौनक समी सुबह जमीन ज़्यादा पर उतर चुकी थी। कल की तकलीफ इस कदर थकावट थी, सब रात को जल्दी सो गए थे और सुबह उठे। गुड मॉर्निंग। अनफाल को आज यूनी से छुट्टी थी और ना ही नहीं होती तो वो कर लेती, क्योंकि नाजुक हसीना की मुकम्मल थकन अभी कहाँ उतरी थी। नीले नैन खुमार आलू सुर्खियों के जद में देर सोने की खबर तो दे रहे थे। पढ़ाई में भी वो अच्छी थी, मगर फिर भी पढ़ने का काम उसे नहायत बदमज़ा लगाता था। अनफाल ने बीएस मैथ कैसे दादा की बात मानी, और वरना उसे हिसाब किताब यूं ही जहर लगता था। बीरा किचन में नाश्ता बना रही थी और अनफाल को सुबह वारद होता देखकर वो खासी हैरान हुई। वास्ता ना हो, जैसे दुनिया से तेरा वास्ता ना, वैसे सवेरे सवेरे उठ जाती है। बीरा ने बावर्ची को पराठा बेल कर दिया, साथ ही जमाइयाँ लेती अनफा को भी लताड़ा। मेरी प्यारी मम्मा जान जो मज़ा छुट्टी वाले दिन जल्दी उठने में है ना, वो इन पराठों में भी नहीं। अनफाल के बेटों की मिसाल पर अबीरा भी हंस गई। अब किधर के इरादा? अबीरा ने अनफा की तरफ देखा। देखते पूछो जो जूस का गिलास फिनिश करते कहीं निकलने की बात हो रही थी। इरादा तो मेरे एंग्री मैन से बात करने का, मगर वो सोए होंगे। आंखों में शरारत लिए अपने नेक इरादे से बाखबर कैसे बोली। अनफाल कभी तो बख्श दिया करो उस गरीब को, खबरदार जो सुबह सुबह तूने मेरे बच्चे को तंग किया। अबीरा को मिराल पर तरस आया और प्यार दोनों एक साथ आए। अनफाल की मुस्कुराहट में गुदगुदा सा तासुर भी शामिल हो गया। अबीरा इस नमूने पर सिवाय हंस से क्या करती, जो पैदा ही इस मिस्कीन को बेआराम करने के लिए हुई थी। तो कब सुधरेगी अनफाल, मुझे तेरी बहुत फिक्र है। अबीरा ने फिक्रमंदी से अनफाल को कहा। मेरी प्यारी मम्मा क्यों करती हो फिक्र, मैंने फिर भी नहीं सुधरना। वो उस वक्त शरारती मूड में थी। अबीरा उसका कान खींचकर मुस्कुरा दी। पगली ना हो तो अच्छा ये पकड़ चाय, दादाजी को दे यार, लॉन में योगा कर रहे हैं, फारिग हो गया होंगे। अबीरा ने मग थमाते उस उठती फिर कि ये हसीना को काम सौंपने की कहा और फिर मग थमाए पलट गई। हाय मेरा हैप्पी बर्थडे का गिफ्ट। मौजूद कमरे में बिल्कुल खामोशी थी। पिंक दीवारों वाला था कमरा, जो रंग बिरंगी पेंटिंग से सजा हुआ था। दीवारों पर बहुत सारे कार्टून बारबी राज के पोस्टर लगे हुए थे। फर्श पर एक सिलसिले की सूरत में पौधों की, जहाँ कई गमले थे वहीं सफेद दरवाजों पर पौधों और फूलों के स्टिकर्स भी अवेजा थे। मिनी बेड की एक तरफ खिलौने की भरमार थी, जबकि दूसरी तरफ प्यारा सा स्टडी टेबल था जिस पर लैम्प किताबें बहुत सारे रंग धरे थे। एक तरफ स्कूल बैग और दो बड़े गमले नस्ल थे। सजा सजाया वो कमरा बल्कि नीम रोशनी में डूबा हुआ था। बेड पर नर्म नाजुक कम से मौजूद शायद सो रहा था, क्योंकि वो कंबल सर तक ताने हुए बेहरकत था। वो किसी यूनिफॉर्म में मालूम होती थी। शर्ट की एक तरफ बैज था जिस पर उसका नाम रानी अवेजा था। इसके हाथ में जूस का गिलास था। गिलास पकड़े वो बेड के करीब आकर बैठ के गुड मॉर्निंग, एक अच्छा दिन आपको मुंतजिर है डियर। इस लड़की ने पेशेवराना मुस्कुराहट से जाया उससे छोटे से वजूद को मुतवज्जो करके गिलास टेबल पर रखा और उसको बहुत प्यार से उसके पास बैठे सर के बाल सुलाए और उसे जगाया। और हैरत की बात थी कि वो जाग भी गई। शायद वो सो ही नहीं रही थी। उस एंड हैप्पी बर्थडे स्वीट लिटिल गर्ल, इस लड़की ने उसे बाकायदा बिठाया, मोहब्बत से विश किया। आज आपका एग्जाम भी है इसलिए उठ जाओ, ये आपका जूस है, इसे फिनिश करके फ्रेश हो जाए, नीचे आ जाए, नाश्ता तैयार है। वो लड़की किसी रोबोट की तरह मुस्कुराहट के साथ उस छोटी बच्ची को हिदायत दे रही थी। वो बच्ची निहायत मासूम और प्यारी थी, मगर उसकी बड़ी बड़ी गजाली आंखें खाली सी मालूम होती थी। देखने में 9-10 साल की लगती थी, मगर उसके चेहरे पर ब्लाक की संजीदगी थी जो अमूमन उस उम्र के बच्चों को खासा नहीं होती। वो लड़की हिदायत करते ही बाहर चली गई। वहीं उस 10 साल की प्यारी सी बच्ची की आंखों में फैली उदासी ने तकलीफ हो गई। आप मुझे फिर से विश करना भूल गए, आप सच में बैड मैन हैं, बहुत 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 बुरे। वो नन्ही बच्ची अपने सराहने से निकाली गई तस्वीर से
बहुत करब के संग मुखातिब थी, ना जाने उसके पीछे कौन था, मगर उस बच्ची की आँखें मोटे-मोटे आँसुओं से भर गई थी। मैं आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करती क्योंकि आप भी मुझसे प्यार नहीं करते। उस बच्ची की तकलीफ़ उसके नन्हे-नन्हे आँसू से वाज़ेह थी। आप सच में दुनिया के बुरे तरीन। अब वो इस तस्वीर को आखिरी नाराज़गी भरे नज़र डाले, आवाज़ आँसू में डूबने के बाद अपना जुमला अधूरा छोड़े दोबारा तकिए के नीचे रख चली थी। न जाने कितनी देर वो अपने मासूम चेहरे को आँसू से साफ करती रही, न जाने कौन इस नन्ही और प्यारे से गुड़िया की उदासी का सबब था। कौन था ऐसा बेहिस अपना तर चेहरा साफ किए वो बेड सोते ही चंद लम्हों में जूस का गिलास खत्म जो फ्रेश होने चली गई। सुबह बखैर मेरे हैंडसम दादू, ये रही आपकी चाय। वो चाय का मग थामे सीधी लॉन में ही आ गई जहाँ सुबहान साहब योगा खत्म किया, अब अखबार का मुताला करने में मसरूफ थे। पोती को देखकर खुद से उठे, हाँ थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट। वो इतराए तो इन्फाल भी मुतबस्सम से सामने वाली कुर्सी संभाल कर बैठी। वैसे दादू आप भी अभी इतने हैंडसम हैं तो जवानी में तो और ही गजब होते होंगे, लड़कियां तो बड़ी मरती होंगी आप पर। बड़ी दिलचस्पी से अपने हसीन दादा जान से दरियाफ्त करती बोली। अरे बच्चा, अपना बंदा अपनी तारीफ करता अच्छा थोड़ी लगता है। अब बंदा वो दाएँ बेनियाज़ी से बोले तो वही जॉगिंग सूट में मलबूस आते अयान के भी दादा जान के तराहट और नज़ाकत को सारे दांत बाहर आ गए। मेरे हीरो आज लगे हाथों तारीफ कर ही डालिए। वो भी साथ ही बुराईजमान होते उनकी हौसला अफजाई किए ये बोला, ओए तुम एक काफ़ी हो जो हर वक्त अपने मुंह में मिट्ठू बनते रहते हो, असल हुस्न तो ये है लड़के। अनफाल ने उसे घूरी से नवाजते हुए साथ ही दादू को कई किलो खून बढ़ाती मिसाल दी। वो क्या है ना, मेरी नालायक कज़न, जो मुझे हासिल है वो नज़ाकत कहलाती है। जो सुना नहीं तुमने कि खुदा जब हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है। अयान ने अपने फर्जी काला झाड़े, कोई ज़्यादा ही नज़ाकत नहीं। आगे ख्याल रखना कि लचक मटक के ना शुरू कर दो, फिर तुम्हारे लिए लड़की की बजाय हमें लड़का ढूंढना पड़ ना जाए। बर वक्त अपना तेज दिमाग चलाए वो कहीं कुछ ऐसा कह बैठी जहाँ दादू जान कह कर लगाते अयान की घुरी में आए। वहीं अयान ने मुस्कुराहट दबाकर महजूज होती अल्फा को देखा। कोजी कहीं की। दादा जान के मुस्कुराया कर तकने पर वो फकत मुंह बिगाड़ने वाले ही दे सका। अलबत्ता वो ज़रूर उसे जो वाबन कह जाती कह के बेचैन कर पा चुकी। अच्छा अच्छा, आप बहस छोड़ो बच्चों, तुम यहाँ बात आपके दादा जान की हो रही है तो भाई इसमें कोई शक नहीं, हम जवानी में किसी हीरो से कम नहीं थे, जैसे कि एक हीरो है हमारे सामने। अब की बार बेहोश होने की बारी अनफाल की थी क्योंकि दादा जान ने अयान को सीधा समझा हीरो कह दिया, जिसके नखरे लम्हों में आसमान को छुए। अल्फा दिल पर होल उठने की माने हाथ रखी। आई आई तो आई नो थैंक्स, थैंक्स नो थैंक्स वालों में इस हीरो को दीदार करने दे। तफाखर से अपने राजहंस की गर्दन अकड़ाए वो दादा पोती ने हैरत भरी आंखें एक साथ अयान साहब पर जमाई। तौबा है दादू, आज तो ये गुब्बारे की तरह उड़ता फिरेगा, ये कुछ ज्यादा हो गया। वो इस हजम ना होती नाइंसाफी पर आवाज बुलंद करके बोली थी, देखो अयान, खुश फहमी सेहत के लिए अच्छी होती है लेकिन गलत फहमी मुजरे सेहत। वो और दादू दोनों शरारती अंदाज में हंस दिया। ओह, यहाँ से तो हमारी हीरो गिरू को देख कर जलने की बू आ रही, मेरे तो दम घुट रहा है। ओके मेरे हीरो दोस्त, फिर मिलते हैं। वो जॉगिंग ड्रेस में था जिससे वाज़ह था कि जनाब की अगली मंजिल पहुंचे। तभी बड़े मज़े से अल्फा को चुरा कर उठ कर खड़ा हुआ। इसी तरह खुश फहमी में उड़ता अल्फा को ज़बान निकाल कर चढ़ा था, बैरूनी तरफ दौड़ गया। आलू कहेंगे, वैसे दादू आपको ये पौधा कहीं कुछ ज़्यादा ही खुश फहम नहीं माना, हीरो है पर इसे कहीं आपको ज़्यादा दिमाग सातवें आसमां पर पहुंचा दिया। अनफा को दादा जान की नाइंसाफी महसूस कन हद तक बेकरार कर गई। मोहतरमा के होंठों पर शिकवा खुद ही रह गया। बस ये खुशफहमी खानदानी और जद्दी कुश्ती है ना चंदा। तभी वो भी जैसे आंख बंद करते वापस अखबार पर नजरें जमाते हंसे, मगर मोहतरमा कुछ सोचे उठ खड़ी हुई। शायद अब उसका इरादा अपनी दुनिया की तरफ जाने का था। किधर? सुबहान साहब ने चाय पीते पूछा, जो खड़ी हुई जाने को तैयार थी। अपनी दुनिया की तरफ वो मुस्कुरा कर मतलब किए बोले, ठीक है मेरा बच्चा, मेरा भी हेलो हाय कह देना अपने फूल बोटों को। वो दादा की जानिब देखती खंदा पेशानी के संग फर्मा बरदारी से सर हिलाती गार्डन की तरफ दौड़ गई। वो सोफे पर आरामदेह अंदाज में सामने मेज पर रखा लैपटॉप खोले स्पाट चेहरा लिए बैठा था जब बल्फा का जगमगाता नाम उसके फ़ोन की स्क्रीन पर लहराया। मेज पर धरा मन पसंद हवाले के सॉन्ग वाइब्रेट होता। फ़ोन थामे मेराल ने मुस्कुरा कर फ़ोन उठाया और कान से लगाया, जबकि मुकम्मल तवज्जो भी काम से यकसर हटाकर टेक लगाए अनफाल की जानिब मबजूल की। हेलो, जाग रही हैं क्या? अपने गार्डन में पहुंचते वो दरवाज़ा खोले अंदर जाते कान से लगाए फ़ोन के संग मोहतात हुए बोले, नहीं सोया हुआ हूँ। मुतवक्का जवाब सुनकर बेसाख्ता हंसी। वेरी फनी, मतलब मैं आपके भूत से बात कर रही हूँ? ओह आई सी, तो ये बताएं कैसे हैं आप भूत अंकल? वो अपने होंठों पर नहीं मुस्कुराहट दबाती आगे बढ़ी तो मोहतरमा ने अपने कल वाले फूलों के पौधे को देखा जिस पर लगा एक फूल दूसरी कली बहुत खूबसूरत है, लहक और महक रहे थे। खूबसूरत सी मुस्कुराहट अनफाल मेर के
चेहरे पर सादगी। अच्छा है भूत, तुम्हें पता है भूत सिर्फ चुड़ैलों से ही उस वक्त बात करते हैं। समझ तो गई हो, बज़ाहिर संजीदा मगर हसीना का मजाक उसी पर उल्टा करता वो जिस होशियारी से बोला। अल्फा का दिल इस बंदे की खातिर खातिर जवाबी पर अशश कर उठा। हाँ हाँ, आप मुझे चुड़ैल कहने की कोशिश कर रहे हैं। दीवार से टेक लगाकर खड़ी होती वो वहीं जरा झुक कर उसके महकते फूल से उठती खुशबू अपनी नाक को करीब ले जाकर महसूस करती हंसकर बोली, कोशिश है ना, मैं तुम्हें चुड़ैल कह रहा हूँ, डरता थोड़ी हूँ तुमसे। क्या अतराहट थी उस बंदे की। अल्पा ने असीर कर देती मुस्कुराहट के संगे गहरा सांस खींचा तो जैसे फूल की सारी खुशबू उस अंग अंग में उतर गई। अच्छा, आप मुझसे नहीं डरते? अगर डरा दूँ तो? वो आंखों में अनजाना सा रश्क भरती पुरस्कार हुई तो एक लम्हा दूसरी जानिब मसला तमेज चुप का तेज तरीन लम्हा ठहर गया, फिर उस साहिर की खुश ख्वाहिश पर सरक भी गया। बात कर वालों, बस तुमसे ये बात, तुम क्यों नहीं है। उस लड़की को उस वक्त फुर्सत सबसे छुट्टी के दिन मिलती थी, तभी वो जान चुका था कि अनपा यूनी की बजाय घारा सामने पड़ा उसकी तवज्जो चाहता काम मिराल उसकी वक्त गैर हाजिर सा लगा। हाँ, तभी तो नहीं जा सकी, वरना आप जानते हैं मैंने तो कल भी मजबूरन बर्थडे की बाइस ली थी। वो हमेशा की तरह अगले ही लम्हे अपने चैलेंज पर उतर आए। वो उसे खुद से डरा तो नहीं सकती थी, लेकिन वो इस बंदे को खुद के लिए ज़रूर डरा सकने में एक्सपर्ट थी। और यही हुआ। अभी मिराल के चेहरे पर कुछ लम्हे पहले की मुस्कुराहट ज़ाहिर होकर परेशानी और फिक्रमंदी का रूप बदल गई। क्या हुआ अनफा तबीयत को? अनफाल उस लहजे को भांप कर जी जान से मुस्कुराती तो उसके लिए बेकरार हो गया, बुखार सा हो गया था। किसी ने मुझे नज़र लगा दी। मेरी आवाज़ की चमक पर न जाने तो वो न आपके सामने मरी हालत में भी चमक से उठी। बज़ाहिर इस बंदे की फ़िक्र पर खुदा वो इस दर्जा खालिस झूठ कर गिरती गई कि एक लम्हा तो मिराल भी धोखा खा गया। उस अनफा का आखिरी जुमला नागवार गुजरा मगर ज़ब्त करने के बाद उसके माथे पर लम्हा भर चिकने अबर कर मालूम होगी। फजूल की बात मत बोला करो, डॉक्टर की कोई मेडिसिन लो। ये बावलों की तरह मुँह हाथ धोती हुई गरीब मिस्किनों प्लांट्स के पीछे पड़ गई। नाश्ता करो, अच्छे से मेडिसिन लेकर सो जाओ। ऑनलाइन दिखाई दे तो बहुत बुरा होगा। अपने लहजे की सख्ती पर अल्फा के लिए ढेर फिक्र हावी करता वो मीनार के सवारों की भरमार के बाद अल्फा को बोलते कि मोहलत समय बिना ताकीदे कर चुका था। सिकंदर के लिए खुद के लिए फिक्र पर निसार होती जा रही थी। शख्स के हर लफ्ज़ में जैसे फिक्रमंदी का दरिया उमड़ आया था। अपने एंग्री मैन की यही फिक्र तो उसकी जान थी। वो बेवाज नहसानी फिर उस शख्स को अपने लिए डरा कर दिल तक मसरूफ़ हुई। नहीं क्या कुछ भी, अब तो आंखों के आगे अंधेरा भी आ रहा है। वो कहाँ इतनी जल्दबाज आने वाली थी, तो वो कैसे इतनी जल्दी अपने इरादे से पीछे हट जाती। अल्फा परेशान हो रही थी, जैसे उस शख्स ने डर कर हार मानी थी। अनफा मीर का तफक्कुर था कि आसमां की बिजलियों को छू गया था। सांस भी अटक रहा था। लब लहजे में महसूस कुन हद तक नकाहत मिलाए वो इस बार मिराल को वाकई डराने में कामयाब ठहरी। अल्फा डरा रही हो, गोया वो बेध्यानी में ही वही इकरार करता बोला। जिससे गुरूर में फरार किया गया। और ये सुनकर अनफाल को राहत क्या जहाँ जहाँ मिला राहत का अगले ही लम्हे मुराद मिराल की ठहरी सांसें अनफा की खिलखिलाती हंसी से बहाल हो गई। वक्त से अपनी बेहाल हो जाती हंसी बेहतर करता वो उसकी नौटंकी पर दास लड़की पर खपा हुआ जैसे जान निकाल कर मज़ा आ रहा था। देख लें, आप मुझसे भले नहीं डरते मगर आप मेरे ये बॉर्डर को कैंडी मैन एंडलेस आई लव यू, बस। वो खिलखिलाती उतराहट के संग पर ये जुमले कहती अपनी खुशी कह रही थी। वो अपने ही लहजे में फिर से वैसे ही बावकार रंग भर रहा था। वो शख्स पर जचता था। ही वेरी फनी। अब इतना बेवकूफ़ भी नहीं हूँ कि अल्फा के पागल बनाने पर बन जाऊँ। भाई, जिस लड़की को कल इतने सारे गिफ्ट मिले हों उसे तो छत से गिरने पर लगती चोट का दुख भी ना हो। इस खुशी के बायस हो फिर बुखार क्या चीज़ है। नौटंकी बात अपने लहजे की कुछ कबल पहले अय्याह की जाती हार पर सलीके से एक पर्दा डाले वो मजबूत लहजे में तमाम हिसाब बेबाक कर गया। मगर अल्फा की मुस्कुराहट तब भी न जाने किस किस के एहसास के तहत उसके नर्म लबों पर झूलती जा रही थी। वो मुस्कुरा रही थी और वो मिराल था, दूर खून के उस पार भी अनफा की खुशी भांप लेने पर कादिर। और आप एक नंबर के होशियार और चालाक। मैंने जो जानना था जान लिया। अब आप जो मर्जी बहाना करें। एंड एंडलेस मैं बिल्कुल ठीक हट्टी कट्टी हूँ।